Why I want to now briefly share 4 ideas for a community library, how community libraries should work. थोड़ा बहुत हिंदी में कोशिश करूँगी बोलने के लिए. Before that, I'll just read out a few surveys that has been done. According to a survey, India's organized sector has only 34 million people, which forms a very small strata of the total population. And there is a report that says, this is the annual status of education report, that is. It's more than 50% of the students in 5th standard attending rural schools are not capable of reading a 2nd standard textbook and are not able to solve basic mathematics. This is the survey report. So based on this, I think Read India is doing amazing work trying to, bridge the gap between this, that gap that exists by helping children to learn in their own communities. So some of the key issues that are prevalent are shortage of sufficient number of schools in the rural areas, lack of student-friendly learning institutions, insufficient infrastructure, rural-urban divide, and method of teaching. So in coming to some of these issues, I was working as a library director of Ashoka University, where I found that Ashoka University is an isolated campus surrounded by many villages in the rural areas. So we thought we should open up some programs for the children surrounding the universities, which, in the villages. So we initiated a program of mobile library. I wrote a proposal and it was to a US organization, and they funded it, and this mobile library, we touched for nearly 3 years, 10 different villages, conducted storytelling sessions. We had a colleague called Anil who was throughout with me in that storytelling session. We trained him in Kathalaya. Anybody who is interested in getting trained to do good storytelling sessions in Hindi, they are welcome to approach Kathalaya. The organization is in Bangalore, and they can take training there to conduct storytelling. And this had a major impact. 70% of the children went back to school, the dropouts. So this was brought to notice by the IFLA's SDGs program, and they put it in the library map of the world as one and only story to be covered from India at that point of time. And so this is one thing that I thought, in your rural areas, you might have certain universities, colleges, schools. Please network उनके साथ, जो librarians वहाँ काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़िए और उनके साथ बात करिए, उनके साथ मिल के आप उनको मोटिवेट करिए, उनके बुक्स को, उनके लाइब्रेरी को ओपन करने के लिए, आपके बच्चों के लिए. ये एक सजेशन है. दूसरी बात, मैं गई थी कैम्ब्रिज. जब कैम्ब्रिज में एक बहुत साल पुराने लाइब्रेरीज हैं, 600 साल पुराने रेन लाइब्रेरी है, और मैं बहुत आश्चर्य हुआ, जो 600 साल से उन्होंने सारी किताबें जो भी है इतना अच्छा प्रिजर्व करा है. और वहाँ का जो लाइब्रेरियन है वो बिल्कुल हर चीज़ का जानकारी है उसको. मैं कहती हूँ कि आपके यहाँ जो लाइब्रेरीज आपके पास है, बुक्स हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल, अपने आप को एजुकेट करिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या किताबें हैं आपके पास. जो भी अगर कोई आता है तो तुरंत बिना कंप्यूटर ओपन करे आप बता पाएंगे, आपको अपने आप को इतना सक्षम कर सकते हैं, क्योंकि किताबें आपके पास तो 2000 होंगे ना मैक्सिमम किसी एक लाइब्रेरी में. कितना है आप मैक्सिमम 1000 से 2000 बुक्स होंगे. तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आपके पास क्या चीज़ है, आप क्या रख रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं बच्चों को, क्या सिखाना चाहते हैं, वो उसके बारे में जानकारी रख लेना अच्छी बात है. वो किताब क्या बात कर रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन उस किताब के बारे में थोड़ा जानकारी रख लीजिए, पर आप भी उसको पढ़ सकते हैं. इससे आपके भी जानकारी अच्छी रहेगी.
तो ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रेड लाइब्रेरी है, 600 साल पुराना लाइब्रेरी, जब मैं गई थी तो उसने जो भी किताब हमने टच करा उस बिना उसको निकाले वो उस किताब के बारे में पूरा जानकारी मुझे बता रहा था। मतलब इतनी सारी किताबें हैं वहाँ, there's thousands and thousands of books, but he was very knowledgeable about what was in his library. ये स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है एक लाइब्रेरियन के लिए। दूसरी बात, मैंने वहाँ देखा कि हर कस्बे में पब्लिक लाइब्रेरी है, छोटे छोटे पब्लिक लाइब्रेरीज हैं दुकानों के पास, मार्केट के पास, और पेरेंट्स जो है बच्चे को वीकेंड ले जाते हैं, खुद बैठ के पढ़ते हैं अपने बच्चों के साथ 1 घंटा वीकेंड उसके लिए लाइब्रेरी विजिट के लिए निकालते हैं। तो आप अपने कम्युनिटी में लोगों को ये बताइए कि वो आएँ आपके बच्चों के साथ और बैठ के उनके साथ किताब पढ़ें। वो जब साथ बैठेंगे तो बच्चे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक ये है, और दूसरी बात, जो बच्चा वहाँ खुद ही इश्यू कराता है उसको सिखाते हैं कैसे बुक इश्यू करना है, कैसे रिटर्न करना है। वो खुद जाके, ऑफ कोर्स दे हैव टेक्नोलॉजी, बट इफ़ यू डोंट हैव टेक्नोलॉजी, मैन्युअली भी आप उनको सिखा सकते हैं कैसे वो इश्यू कराना है, कैसे रिटर्न लेना है, ड्यू डेट डालना है, उनको बताना है कि कब वापस करना है। तो एंड जितनी भी बुक्स वो दे आर अलाउड टू टेक एज मेनी बुक्स एज दे वांट, बट यहाँ अगर रेस्ट्रिक्शंस है तो कोई बात नहीं, 3 बुक या जो, बट जो बच्चा मैक्सिमम इश्यू कराता है और जाके लेके वापस आके उस किताब के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट रीडर का मिलता है बाय द काउंसलर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। तो एक दिन उनको बुलाते हैं और उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इससे मोटिवेटेड रहता है बच्चा कि उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा बेस्ट रीडर। तो ये सम एग्जाम्पल्स दैट आई हैव गिवन। और ज़रूरी नहीं है मोबाइल लाइब्रेरी हमने प्रपोजल डाल के बड़ा बड़ा गाड़ी के लिए मंगवाया, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्रिया यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं काम करती थी आफ्टर अशोका जॉइंट क्रिया इन आंध्र प्रदेश, देयर ऑल्सो वी हैव रीड इंडियाज 2 सेंटर्स। एंड ये जो पैंडेमिक के टाइम वहाँ ऑटो रिक्शा एक आता था, he helped in taking books to the community, and ऑटो रिक्शा में बैनर लगा दिया रीड इंडिया का, बस उससे बच्चे वहाँ ओपन लाइब्रेरी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे। और हमारे जो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी टीम थे वो जाके ये प्रोग्राम सब करते थे। तो ये फ्यू आइडियाज़ एंड सजेशंस दैट आई थॉट आई विल शेयर। एक और है, एक आई थिंक रीड इंडिया has a lot of inclusivity in their system। तो जैसे कीबो ऐप एक है जो बहुत यूजफुल है, कई मेरे ख्याल से we have given them, no, some of the libraries have already got। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो किताब, मान लीजिए इंडिया इज हैविंग लॉट ऑफ डाइवर्स पीपल, मान लो एक गुजराती बच्चा कर्नाटका में है बट वो रीड इंडिया के सेंटर में आता है, उसको सिर्फ कन्नड़ा के बुक्स देखते हैं, वो समझ नहीं आता उसको, इज़ न्यू टू द लैंग्वेज। बट कीबो ऐप से वो स्कैन करके वो रीड आउट करता है, पढ़ने का जरूरत नहीं, टेक्स्ट ट्रांसलेट भी होता है तो, बट वो पढ़ता है उसकी लैंग्वेज ऑफ चॉइस में। इफ़ ही वांट्स टू गेट द इंफॉर्मेशन इन गुजराती, ही गेट्स इट इन गुजराती। एंड ऑल्सो दिस टूल इज़ वेरी यूजफुल नॉट ओनली फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, बट गांव में जो फार्मर्स हैं उनको एक लीगल डॉक्यूमेंट आता है उनके पास, उनको पढ़ने का पता नहीं क्या है, उसमें क्या लिखा है साइन करने से पहले, ये कीबो ऐप से वो उसको स्कैन कर लेंगे तो वो सुन सकेंगे अपनी भाषा में क्या लिखा है बिफोर ही कैन साइन द डॉक्यूमेंट। सो दिस हेल्प्स पीपल ऑफ ऑल स्ट्रेटा टू यूज दिस टूल। And this is one thing I just thought of sharing. I think every child should have a tool that helps them to learn. Another thing is that I had written a article called Voice of India's Disabled Demanding Equality in Library Services. Sometime in 97 I had
This was translated in 5 foreign languages. About 1,250 people have cited it in. Even today, that I wrote it in 97, but even today I don't see any library having implemented completely whatever ideas that were recommended. But please, वो आप एक बार पढ़िएगा, जानिएगा और जो आपसे हो सकेगा उसको implement करने की कोशिश कीजिएगा. Thank you very much.